Hello everyone. We all struggle with remembering or retaining the textbooks that we read. There is so much that we have to cover in UPSC, and we feel that even after multiple iterations, we are not remembering a lot of it. So I've had these challenges. So I have worked actively on trying to maximize my recall to make sure that I'm retaining as much as possible. So my philosophy has been based on this idea that learning in person is very different from learning from book. देखिए, if you're learning in person, where you can talk to a person, you can have a conversation, you can have a back and forth dialogue. Let's say I explain something, आप उसको समझेंगे, you will reinterpret it in your own words, then you will repeat it back to me, and then I can give you feedback. You know, so it's a very informal process. So that is my idea. लेकिन ये सारी जो strategies जो मैंने devise की हैं, they were not so obvious to me at that point of time. But now that I think about it, learning from a book is more about forming a bond with that book, right? And there are various strategies for that. So उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देता हूँ. So I am Arpit Singh and I appeared for the CSC interview of 2025. So इस साल के जो 2025 का जो प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स में आई एम एक्सपेक्टिंग 110 प्लस एज पर मोस्ट आंसर कीज. उससे पहले 2024 में आई गॉट 92. आई मेड अ सिग्निफिकेंट जंप फ्रॉम हेयर टू देयर. एंड इट वॉज नॉट जस्ट कि इस दिन अच्छा हुआ मेरा प्रीलिम्स के दिन. लाइक आई गेव सेवरल ओपन टेस्ट्स दैट आर कंडक्टेड बाय वेरियस इंस्टीट्यूट्स. एंड उसमें जो मेरे मार्क्स थे, एंड इफ़ यू सी द एक्सपेक्टेड रैंक, द रैंक लिस्ट दैट दे कम आउट विद, I was consistently in the top 100 to 200 ranks. So it's not like I just got lucky on that day. I was performing decently well consistently. In fact, अब जैसे पॉलिटी में देख लीजिए तो आई रिमेंबर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इनके आर्टिकल्स मेरे को याद थे. शेड्यूल्स के बारे में को शेड्यूल्स का कंटेंट काफ़ी हद तक मेरे को याद था. फॉर एग्जाम्पल इवन शेड्यूल 3 and 4, 7 में लिस्ट्स में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का मेरे को आइडिया था. लाइक आई हैड एक्सपोज माई सेल्फ इनफ नंबर ऑफ टाइम्स टू दोज थिंग्स. उसके अलावा इकोनॉमी में, apart from my source material, I was very confident at recalling data with respect to a trade, FTA agreements that we have done. Then geography में चलो mapping is different and mapping की एक separate video होगी, but I remembered all the countries of the world, places in news जितना आता था news में. I had extensively done mapping for that. Drainage, passes, rivers, environment में हमारा protected area networks हो गया, 100 plus national parks, around 60 tiger reserves, कुछ रामसर साइट्स हैं हमारे, ऑलमोस्ट 90 हो चुके हैं. ऑल ऑफ दैट आई हैड रिमेंबर्ड. एंड ए मैक में, हाँ, ए मैक में लॉट्स ऑफ ऑथर्स फ्रॉम एंशिएंट मिडिवल इंडिया, उनके टेक्स्ट्स, contributions to architecture by various dynasties, all of that. So I had put in the effort, and it helped me definitely in prelims, because prelims is more fact heavy, but also a lot of it in mains. So let me just go through all of these strategies, and I think I'm sure that you will also benefit from them. तो देखो यार, सबसे पहले let us just come to highlighting. Highlighting is the most basic thing, and let me just show you an example. So to demonstrate highlighting, मैंने एक ऐसा टेक्स्ट यूज़ किया है जो हम ज़्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा होगा. दिस इज़ फ्रॉम इंडियाज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023. इसमें दिस इज चैप्टर ऑन मैंग्रोव्स. So let us say I have to read this text. So when I highlight, I keep in mind whether this is something going to be useful either to my overall knowledge, conceptual knowledge, either it will help me in prelims or it will help me in mains. So for example, यहाँ पे लिखा हुआ है mangrove ecosystems are carbon dense, possibly second only to peat swamps. Now ये ranking दे रखी है, and some people might think that this is important, but I don't see this being of any use anywhere. हाँ, मैं इसको ज़रूर कर सकता हूँ. Now this does not help me conceptually. This does not even help me in prelims. But mains में, if a question comes on mangroves, it is important जो ये keywords हैं. My brain should learn to associate these keywords with mangrove. So I want to expose myself to this. So जब भी मैं इस text को अगर मान लो मैं वापस पढ़ूंगा, if this was my source material, so whenever I read mangrove, I am reading it as carbon dense, crucial carbon sink. ये keywords important है because these keywords help me to limit the text that I have to write in answers, in mains के answers, and also they actually add value to my answer. फिर आगे क्या बताया हुआ है? Okay, substantial carbon stocks and coastal buffering capacity. Again, important keyword. Not just important keyword, it helps me conceptually, making them ecologically and economically vital. इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ because
Again, this is opening up dimensions. If I know कि mangrove is related to ecology and economy, I can then open dimensions and it can actually give me more points to add if there's a question on mangroves. So this is how I think. फिर आगे क्या है? Highest carbon density. I can do this, but I would argue to myself कि यार मैं तो already carbon sink कर दिया है. ठीक है? Sparking interest in potential for mitigating greenhouse gases. Again, conceptually भी important है and means में भी important है. Extensive root systems हैं, ठीक है? Substantial biomass underground. If I have to explain कि how exactly it is a carbon sink, so this helps me conceptually. Mangrove as a deep organic soil forest type, ठीक है? Could benefit from initiatives like REDD+, ठीक है? Again, I associate REDD+. अगर कुछ क्वेश्चन आता है कि how to conserve mangroves, this is something that I can add to my answer. Okay, should be considered in climate change mitigation strategies. See, so what am I doing here? ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, हाईलाइटिंग इज नॉट सपोज टू, इट इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव नोट मेकिंग. इनफैक्ट आई विल कवर नोट मेकिंग लेटर इन दिस वीडियो, बट आई एम एक्चुअली फर्स्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर. बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी जो रीडिंग है वो पैसिव ना हो, वो एक्टिव रहे. अदरवाइज लुक, दिस ब्रेन, इट इज़ वेरी स्मार्ट, एंड वेन एवर यू आर ट्राइंग टू पुट इन एन एफर्ट, इट विल एक्चुअली फाइंड सम वे टू कंजर्व एनर्जी. हम कुछ टेक्स्ट पढ़ने लगते हैं, एंड एज वी स्टार्ट रीडिंग इट, आवर माइंड बिकम्स वेरी पैसिव एंड देन वी जस्ट ग्लॉस ओवर द टेक्स्ट. तो हमने वो पेज पढ़ तो लिया है टेक्निकली, बट वी हैवंट रियली ग्रास्प्ड द कंटेंट्स ऑफ इट. सो बिकॉज आई एम ऑलवेज looking at every line and thinking, is it helping me conceptually? Is it going to help me in prelims? Is it going to help me in mains? So this way I'm actually so much more engaged with the content, and hence I'll retain more. So that was more about highlighting. It's very basic, and I'm sure a lot of us do it very well, but I just wanted to show you that highlighting, maybe there's an active way to do it. Otherwise so ये पूरी copy ही सारा text ही आप highlight कर बैठो. Alright, so moving on to next point. So first is highlighting. Now second is you have to engage with the content. Alright, अब देखिए मैंने तो engage, so I'll just give you an example. So this is directly from my spectrum. Okay, अब इसमें क्या था, इसमें ना सब्सिडरी लाइन्स के बारे में बता रखा था कि इधर these were the states that accepted the subsidiary system, and इसका कुछ order बता रखा था. So I thought that this is some data that I should be remembering. I should more or less remember ये states कौन से हैं, एंड ऑर्डर भी पता चल रहा है तो अच्छी बात रहेगी. सो वॉट आई डिड वॉज आई काइंड ऑफ एंगेज विद द कंटेंट. एक कुछ छोटा सा मैंने कुछ फॉर्मूला बना दिया. ये क्या लिखा हुआ है, हैदराबादी टैप बियर से राजस्थानी हुक्का. ओके, टोटली नॉन सेंसिकल थिंग दैट आई हैव रिटन, बट डज इट हेल्प मी? इट डज हेल्प मी. यहाँ पे क्या ऑर्डर दे रखा है, हैदराबाद, फिर तांजोर. नाउ हैदराबाद में उसके यू कैन आर्ग्यू दैट मैसूर उसके पास ही है, सो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट इन माई ब्रेन आई रिमेंबर दैट एसोसिएशन. सो तांजोर आ गया, ए से फिर आई थिंक अवध आता है, अवध के बाद पेशवा, देन वट एवर बी से उसके बाद क्या, फिर देन भोसले, एंड देन राजस्थानी में मैंने देवर सेवरल राजस्थानी स्टेट्स, राजपुताना स्टेट्स दैट आई मेंशन्ड हियर, एंड फाइनली होलकर्स वर द लास्ट. All right, this does not have to mean anything. This is just an association to help myself remember. I am engaging with it. I'm having a conversation. I am making it more interesting. इसमें कितना टाइम लगेगा मेरे को, ये मेरे को कुछ, this does not have to be politically correct. It does not have to have any deeper meaning. It just has to be some random text that you can make. Just be creative, engage with the content, and वो ज़्यादा याद रहता है. और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एंड आई एम श्योर आप ये सब करते हैं ही. But if you're not doing this, do make it a habit. It will help you remember these things. So एक और ये है लक्ष्मीकांत से, so ये pardoning power of the president में. So अभी तो मेरे को याद हो चुकी हैं सब चीज़ें, but when I started, I used to get very confused कि यार ये pardoning, commutation, remission, respite, reprieve, इनमें फ़र्क क्या है. ना pardoning मेरे को याद रहता था, because I don't know, over the years you always hear this word a lot in normal language also, but you don't hear these other words so much. एटलीस्ट मैंने नहीं सुने थे. सो ओके, कॉम्यूटेशन मतलब इसमें म्यूटेट आ रहा है, म्यूटेट का मतलब चेंज होता है, सो इट डिनोट सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अ लाइटर पनिशमेंट. रीमिशन, इसमें मिस आ रहा है, सो इट मीन समथिंग इज बीइंग मिस्ड, इट मीन समथिंग इज बीइंग रिड्यूस्ड विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर. ये यहाँ से आ गया. सिमिलरली मैंने यहाँ पे कुछ लॉजिक बनाया था. नाउ दिस लॉजिक माइट सीम नॉन सेंसिकल टू यू, इट सीम्स नॉन सेंसिकल टू मी राइट नाउ, बट इट हेल्प मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड वाई नॉट?
ये मार्जिन्स हैं, ये वाइट स्पेस है, ये खाली छोड़ना थोड़ी है मेरे को. इट्स ऑल फॉर मी टू यूज़ एंड टू बेटर रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो रिस्पाइट में मैंने कुछ एसपी का स्पेशल ट्रीटमेंट. सो फॉर स्पेशल फैक्ट इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द ओरिजिनल पनिशमेंट, तो दिस इज यूज. एंड सिमिलरली यहाँ पे कुछ सम लॉजिक है दैट it's not really important to get into. So engage with the content, and this would be a second strategy. If you're not using it, do use it. काफ़ी हेल्प करता है. एंड देखिए, अगर नहीं भी हेल्प कर रहा है तो इसके बाद देर इज़ वन मोर थिंग दैट यू कैन डू. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इस चीज़ में जो मैंने दिखाया आपको, लाइक सम पीपल माइट फाइंड दिस डिफिकल्ट टू डू. इससे भी एक आसान तरीका है. ओके, बेसिकली यू कैन आस्क क्वेश्चंस. दिस इज अनदर वे टू एंगेज विद द कंटेंट ओनली. कि या देखिए, this is basically from my geography. I think yeah, climatology का part है. So when I was reading the text, I used to find that okay, पहली बार तो मैंने पढ़ लिया, but every time I was revising, that revision I was not sure whether it was helping me or not. And ये शायद आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप इसको रिवाइज कर रहे हैं टेक्स्ट को, बट रिविजन कैन समटाइम्स फील सो पैसिव. बिकॉज एक तो हमें वैसी जल्दी होती है, हमको लगता है तो हमको आता है, तो जल्दी जल्दी करना होता है. So that is why questions can help. In one of your iterations, when you're going through the text, and this is something that you might not do in the first iteration, but second iteration या third कभी या second और third iteration में भी कर सकते हैं. You just go through the text and you make questions. जो भी चीज़ें आपने हाईलाइट की हुई हैं, जो भी चीज़ें आपने याद की हुई हैं उस टेक्स्ट में, आप उसके क्वेश्चंस बनाते जाइए. Why winds slower? Why winds are slower close to the surface? What is Coriolis force? Coriolis force is stronger at the equatorial poles. क्यों? Isobar क्या होता है? Direction of cyclone. Now at this point of time, these feel very obvious to me. In fact, ये तो मेरे को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. But because this has become well integrated now, इतनी बार कवर करके अब ये याद हो चुका है. But एक टाइम पे इतने अच्छे से याद नहीं था. So this was a way for me to not just by making questions, I was engaging myself in this current iteration. अगली iteration में जब मैं रिविजन करूँगा, so I'll directly just try to answer these questions in as many detail as possible. यहीं इसके साथ में अलग पेज पे शॉर्ट में मैं इनको आंसर करने की कोशिश करूँगा. सो दैट वुड बी अनदर मेथड फॉर मी टू रिवाइज इट. सो दिस वॉज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी. अब इसके बाद भी देखो, इससे सबसे पावरफुल टूल है, एंड मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ गॉसिप. ओके यार, हम गॉसिप पूरा दिन भर करते हैं एंड वी नेवर गेट टायर्ड ऑफ इट. इनफैक्ट सम एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट से कि यार हमारा जो ब्रेन स्मार्ट है ह्यूमन बींग्स का, इट इज स्मार्ट प्योरली बिकॉज सो दैट वी कैन एंगेज इन डीप सोशल रिलेशंस, एंड सोशल डायनामिक्स का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ही गॉसिप होता है. सो ये देखो, ये क्या है, आई मेड दिस विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड. सो देखो, हैरी पॉटर है, ठीक है, हैरी पॉटर गया हैग्रिड के हेड में. अब हैग्रिड कैरेक्टर जिसने नहीं देखा है, ठीक है, इज दिस कैरेक्टर. ओके, तो हैरी गया हैग्रिड के हेड में, वहाँ उसको हरमाइनी मिली. वहाँ उसने देखा कि एक एल्फ है जो गार्डन में काम कर रहा है, एंड ही इज़ वाटरिंग द गार्डन. वहाँ से सन है एवेपोरेट कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. एंड नाउ यू विल सी कि व्हाट आई एम एसोसिएटिंग दिस विद. पॉटर इज पॉवर्टी, यहाँ हंगर है, यहाँ हेल्थ है. ई से एल्फ एजुकेशन है, यहाँ जेंडर है, एंड सो ऑन. एंड आप समझ ही गए होंगे कि व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इज SDGs. थोड़ा टाइम टेकिंग था, 15-20 मिनट मेरे को एक बार लगा था, बट आई न्यू कि दिस SDGs इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, स्पेशली फॉर मेंस. काफ़ी कंक्लूजन्स में आपने भी यूज़ किया होगा अगर आपने मेंस लिखा है, या नहीं तो आप आंसर राइटिंग करते हैं, तो SDGs कम इन वेरी हैंडी इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस. सो या, जस्ट मेक अप समथिंग, गॉसिप, मेक इट इंटरेस्टिंग, एंगेज विद इट. यार ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, एंड हमारा दिमाग है, लाइक वी हैव सो मेनी अदर आइडियाज़, मूवीज़ दैट वी हैव सीन, शोज दैट वी हैव वॉच्ड. उनको एंगेज करो, ब्रिंग दैट क्रिएटिविटी हेयर, एंड या दिस बिकम्स इन्फिनिटली मोर इंटरेस्टिंग. अब इसमें एक और एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ. सो ये मेरे मेंस का ही है, ये मेरे कुछ मेंस के नोट्स हैं. सो देयर वाज अ रिपोर्ट बाय स्टेट ऑफ डेवोल्यूशन टू पंचायत एंड स्टेट्स 2024 की एक रिपोर्ट थी, विच आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर, बिकॉज अगर पंचायती राज पे कुछ क्वेश्चन आए, सो दिस कुड बी इंपॉर्टेंट. एंड आई वाज ट्राइंग टू कम अप विद अगेन रीजन्स की, ऑलराइट, व्हाट आर द चैलेंजेस एज पर द रिपोर्ट दैट. सो द सोर्स दैट वेयर आई वाज रीडिंग दिस फ्रॉम, वहाँ पे दे हैड मेंशन्ड वेरियस चैलेंजेस एज पर द रिपोर्ट जो PRIs फेस कर रहे हैं. So obviously, one is understanding. I did understand that. But the challenge in mains is कि आपको क्वेश्चन दिखता है, and in just few seconds you have to cover all those dimensions. जितना आपको कम सोचना पड़े, जितनी जल्दी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाए, that is better. So what I did is
आई क्रिएटेड अ गॉसिप. ओके, आई स्टार्टेड गॉसिपिंग अबाउट इट. क्या है? देखो यार, लिमिटेड फाइनेंशियल इकोनॉमी है, ये तो पता है. दिस इज अ प्रॉब्लम, वेल नो, वी ऑल नो दिस. अब देखो पैसा नहीं है तो अब पुअर इंफ्रा होगा, डिजिटल डिवाइड होगा. अब क्योंकि ये पैसा नहीं है और ये पुअर इंफ्रा तो है ही, उसके बाद वी कैनॉट हायर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड पर्सनल. ओके, सो दिस इनएडुकेट ह्यूमन रिसोर्स एंड पर्सनल. अब चलो, अगर उन्हें हायर कर भी लिया तो उनकी पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग है. फिर मान लो अगर हायर भी हो गया, पैसे थे भी और जो फंड्स थे भी वो यूज़ नहीं हो पाते. और मान लो अगर यूज़ हो भी पा रहे हैं तो पावर नहीं है. राइट? और पावर है भी, एम्बिगुअस फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डुप्लीकेशन अक्रॉस ग्राम ब्लॉक, जिला पंचायत, अलग अलग स्कीम्स हैं. राइट? सो बेसिकली क्लैशेज विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट इट एज अ स्टोरी. ये स्टोरी शायद आपको सेंस ना बनाई हो, बट मेरे दिमाग में बहुत सेंस बनाती है. मेरे दिमाग में इट्स लाइक अ कॉन्वर्सेशन प्लेइंग बिटवीन टू नॉर्मल पीपल. अच्छा देखो यार, पैसा नहीं है, पैसा है तो ये नहीं है, ये है तो वो नहीं है, वो है तो ये नहीं है, और हो भी जाए तो ऐसा होगा वैसा होगा. And this strategy I have used in several places for several different kinds of dimensions that I want to cover for some topic. And मेरे को तो बहुत बढ़िया से याद होते हैं इससे. So find this out for yourself. Try it out. Make an effort. I'm sure you have the power of gossip inside of you, and you can actually make it more interesting. And फिर ये चीज़ें आपको ज़्यादा रिटेन होंगी, अच्छे से याद होंगी. And you just have to pick one source or like one initial idea, वो याद रखना है, and all the points will flow from there. All right? So this was point number 4. Next is something that I called source mapping. इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ. Look, ये लास्ट ईयर का PYQ है that consider the following subjects under Constitution of India. पहला है लिस्ट 1, यूनियन 7 शेड्यूल में यूनियन लिस्ट. सेकंड है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड कंडीशंस ऑफ गवर्नर ऑफिस. ये पूछा था कि फॉर विच ऑफ दीज, फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यू नीड रैटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन वन ऑफ द स्टेट्स. ऑलराइट? एंड स्पेशल मेजोरिटी भी होता है, वो नहीं लिखा है, बट इनमें से किस केस में वन ऑफ द स्टेट्स लिखा है, वन हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन चाहिए. सो इसका आंसर है 1 and 2. इसमें चाहिए होता, इसमें चाहिए होता, इसमें नहीं चाहिए होता. नाउ इसमें लेट्स से आई फाउंड दिस PYQ एंड मैंने इसका कहीं सोल्यूशन देखा, और लेट्स से दिस कुड हैव बीन अ मॉक. कोई मॉक टेस्ट में मे बी दिस क्वेश्चन कुड हैव कम एंड आई सॉ द सोल्यूशन. व्हाट आई वांट यू टू नो इज, इट इज़ नॉट इनफ कि आप बस सोल्यूशन देखिए. सोल्यूशन आपने देखा है, बट उसके बाद डू समथिंग कॉल्ड सोर्स मैपिंग. जो आपका ओरिजिनल सोर्स है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई लक्ष्मीकांत. सो ऑन अ सर्टन पेज, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है उसमें ये चीज़ें दे रखी हैं. एंड यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन यहाँ पे दे रखा है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, ये जो है ये एक्चुअली 7 शेड्यूल की बात हो रही है, ये दिया हुआ है. वाई एम आई डूइंग दिस? बिकॉज अल्टीमेटली मेरा सोर्स मटीरियल से माई एक्यूरेसी शुड बी वेरी हाई. सो आई एम मेकिंग एन एसोसिएशन टू माई ब्रेन कि यार देखो, ये जो चीज़ थी ये मेरे बुक में लिखी हुई है इधर. अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज, अ लॉट ऑफ टाइम हमारी जो सोर्स बुक्स हैं हमने उनको कई बार पढ़ा हुआ है, but yet we forget these key details that are already there. In fact, sometimes we don't even notice कि यार एक्चुअली मेरे बुक में इस जगह पे चीज़ लिखी हुई थी. सो आई एम reinforcing द कनेक्शन. ऑलराइट? ये मेरा ब्रेन हो गया, जैसा भी ब्रेन होता है, ये मेरा ब्रेन हो गया, एंड ये मेरी बुक हो गई. आई एम reinforcing दिस कनेक्शन सो दैट नेक्स्ट रिविजन में अगली बार मैं पढ़ूंगा ना तो मेरी आंखों को ऑलरेडी इट विल पॉप आउट दैट येस, I covered this previously. This was there in a question. This is important, and I will retain it better. And मैं तो इसको हर क्वेश्चन के लिए करता हूँ. लेट्स से अगर एक मैंने मॉक दिया है उसमें 100 क्वेश्चन हैं, उसमें देखो आई थिंक 30 to 40 तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन इधर उधर से पूछ लेते हैं. बट लेट्स से 60 क्वेश्चंस आर फ्रॉम सम सोर्स दैट आई हैव रेड. Actually verify this and see it with your own eyes that हाँ this exists in my source here on this page. वो बस एक बार रजिस्टर करना है आपको and then move on. This little habit across all the tests that you will give, across all the PYQs that you will practice will actually help, and इससे accuracy बढ़ती है. Solution, and फिर उसके बाद कुछ वैल्यूडेशन है, मान लो इसमें कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली तो मैं उसको मार्जिन में लिख सकता हूँ, नॉर्मल सिंपल वैल्यूडेशन कर सकता हूँ. सो अगेन एंगेजिंग विद द सोर्स मटीरियल, एंड उसको और मैं उसमें और उसको एनहांस भी कर रहा हूँ इस तरीके से. सो दैट वॉज पॉइंट नंबर 5, सोर्स मैपिंग. पॉइंट नंबर 6 इज समथिंग वेरी ऑब्वियस जो हमको पता होता है, बट आई थिंक हम करते नहीं हैं, क्योंकि
मैंने खुद ने नहीं किया था 2024 में, एंड 2025 में आई डिड दिस, एंड आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, दे डोंट एक्टिवली डू दिस. तो क्या करता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग एक हर आइट्रेशन में, अगर मैं पॉलिटी का आइट्रेशन कर रहा हूँ तो मैंने फिर उसके PYQs करे होंगे, मैंने कुछ मॉक्स लिखे होंगे. So I will know when I have done these things कि there are some topics where I'm lagging. So I used to maintain this list, topic, सब topic, and उसमें weaknesses क्या हैं. So at the time that I wrote this last year, मेरे को पता था कि यार ये सब चीज़ें मेरी वीक हैं. एग्जैक्ट आर्टिकल फॉर ईच DPSP में भूल जाता था. इतने सारे DPSP में कंफ्यूज होता था कि विच वॉज 31, विच वॉज 39, विच वॉज 40, 41, 41A एंड सो ऑन. एंड फंडामेंटल राइट्स में जो सब क्लॉसेज हैं, अब जो 19 है, 19 में 6 फ्रीडम्स हैं. अब वो 119(1) क्या है, 19(2) क्या है, एक्सेप्शंस किसका कहाँ पे है. इसके अंदर भी A to G होता है, वेयर F इज़ नो लॉन्गर देयर. ऑल राइट, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई न्यू आई वॉज वीक एट. तो जब तक मैं लिखूंगा नहीं ना, ये मैं आइट्रेशन में लिखूंगा, मेरे को पता होगा कि मेरी वीकनेस है. अगले सब्जेक्ट पे पहुंचूंगा इकोनॉमी पे, देन एनवायरमेंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री एंड सो ऑन. आई कम बैक टू पॉलिटी नेक्स्ट टाइम एंड मेरे को कुछ याद नहीं होगा. सो मेंटेन दिस रजिस्टर. मैं तो ये एट द एंड ऑफ द वीक करता था. आप इसको डेली कर सकते हो. इफ़ यू डोंट लाइक टू यूज़ एक्सेल और समथिंग, जस्ट कीप अ नोटबुक where you just keep jotting these ideas that you have to work on. Give feedback to your brain that these are my weak areas, and so next time when you revisit that subject, automatically you'll feel your efforts focused हो जाएंगे. These small hints that you give to your brain कि यार यहाँ पे काम करना है, it matters. ओके, फाइनली चलो नोट मेकिंग पे आते हैं. ओके, देखिए नोट्स हैं क्या. नोट्स आर जस्ट अ compressed form of what you already know. Okay, compressed of already that you know. ठीक है, अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आई हैव सीन एंड आई हैव रिसीव्ड क्वेश्चंस which indicate that people just feel that I have to start making notes right away. ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है कि नोट्स कब बनाना है. इनफैक्ट मेरे को भी क्वेश्चन आता था, एंड आई जस्ट वांट टू से दैट नोट्स शुड ओनली बी मेड व्हेन योर सोर्स इज वेल इंटीग्रेटेड. जो आपका सोर्स मटेरियल है, अगर लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, आपकी शंकर IAS है, PMFIS की किताब है, जो भी आपका सोर्स है, एक बार वो आपको अच्छे से इंटीग्रेट हो चुका हो, ओनली देन यू शुड स्टार्ट मेकिंग नोट्स. अदरवाइज, एंड दिस इज आई हैव एक्सपीरियंस्ड, दैट प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग डज नॉट टेक हेल्प, इट डज नॉट रियली हेल्प मी. क्या होता है, अगर ये मेरी एक किताब है, इसमें ये मान लिए 2 पेज के नोट्स, ये 2 पेज के वट एवर द बुक ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द बुक आर देयर, and I want to reduce this to like some half page of notes. So this process should be frictionless. A good idea that you can test this is, if I am doing this process and if I feel कि यार हर इस मेरे जो नोट्स की जो भी कॉपी है, इसके हर लाइन लिखने में मेरे को यहाँ पे 4-5 बार देखना पड़ रहा है, देन इट मीन्स आई एम नॉट रेडी टू मेक नोट्स, बिकॉज ये चीज़ इंटीग्रेटेड ही नहीं है मेरे दिमाग में. I can't just glance at it for 30 seconds and I can't fill this page. So इससे क्या होगा, अगर आप पहले ज़्यादा जल्दी नोट्स बनाएंगे, दिस विल बिकम अ न्यू सोर्स. आपने कुछ नहीं, अपना एक सोर्स बढ़ा लिया, और ये सोर्स वैसे ही इतना अच्छा नहीं होगा, बिकॉज इसमें क्योंकि आपको पहले वाला अच्छे से याद नहीं था, तो इसमें आपने स्कोर छोटा कर दिया. इनफैक्ट यू हैव लॉस्ट इन्फॉर्मेशन. नोट शुड बी मेड ओनली देन व्हेन यू कैन कंप्रेस इट, एंड इवन देन यू डोंट लूज आउट, बिकॉज जो चीज़ें आपने यहाँ पे नहीं लिखी हैं वो आपको ऑलरेडी याद हो चुकी हैं. जो चीज़ें यहाँ पे रह गई, मान ली ब्लू वाली जो चीज़ें हैं, वो मैंने यहाँ पे नहीं उतारी हैं, बट आई डोंट नीड टू डू दैट बिकॉज दे आर ऑलरेडी सो वेल इंटीग्रेटेड इन माई नॉलेज. फाइनली, नोट्स का देखो एक पर्पस होता है. नोट्स आर नॉट फॉर लर्निंग, दे आर नॉट फॉर मेमोराइजेशन, दे आर ओनली फॉर रिविजन. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, notes have to be your own. All right, I have received requests, I have seen other people make requests to other people कि यार मेरे को notes दिला दो किसी के. I'll try to give an analogy. Let's say मैंने एक पेंटिंग बनाई है. Okay, I made a painting and you say me यार मेरे को अपनी पेंटिंग की कॉपी दे दो. एंड हो सकता है उस पेंटिंग में काफ़ी अच्छी डिटेल्स हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है उससे, बट वो पेंटिंग आपको मिलने से इट विल नॉट बेनिफिट यू. The process of having painted that matters more than having that painting. Basically what I'm trying to saying is, process of note making
इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नोट्स, और ये आपको खुद करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको किसी के नोट्स मिल जाएंगे। देखो नोट्स तो ठीक है, एक सोर्स मटेरियल चाहिए होता है, स्पेशली मेंस में यू डोंट हैव द लग्जरी टू मेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग। बहुत सारे टॉपिक्स के लिए यू विल हैव टू फाइंड सम रेडीमेड नोट्स, बट दैट इज़ नॉट योर ट्रू नोट्स। वो आपके लिए बस एक सोर्स मटेरियल है। वेन यू हैव लर्न समथिंग अब सब्जेक्ट इन डिटेल, जब आपको अच्छे से समझ आ चुका है, फिर आप उसका नोट्स बनाते हैं। सो वेन यू आर एक्चुअली मेकिंग नोट्स, इट मीन्स योर ब्रेन इज, इट्स लाइक आपके ब्रेन में कुछ नॉलेज है, वो अभी स्कैटर्ड है। लाइक ये मान लो ये जो सर्कल्स हैं, ये डेटा पॉइंट्स हैं, ये ना ऐसे सब स्कैटर्ड हैं इधर उधर। यू द नोट मेकिंग प्रोसेस बेसिकली स्ट्रक्चर्स इट नीटली, पर ये आपके ब्रेन से ही आना चाहिए। ये जो चीज़ है लेफ्ट में, ये आपके ब्रेन से आप राइट में करोगे। इसके प्रोसेस में जब आप ये कर रहे होगे, यू विल स्टार्ट टू फील दैट it is so much more structured. You'll start to feel that you can now you can so easily replicate it in an exam setting, and you can replicate it fast. And this also leads to a very powerful form of revision. So again, I'll tell you, process of note making is much greater than notes. आप किसी के भी नोट्स ले लीजिए, उससे कुछ नहीं फ़ायदा हुआ आपको। श्योर नोट्स तो चाहिए ही होंगे, बट दैट जस्ट एक्ट्स एज अ सोर्स मटेरियल फॉर यू। खुद के नोट्स बनाओगे आप, वो तभी बन पाएंगे जब आपको अच्छे से वो टेक्स्ट अच्छे से, जो आपका सोर्स है वो अच्छे से समझ आ चुका है। सो आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ माई नोट्स। ओके, सो मान लीजिए, देखो यार ये मेरे ना उसके नोट्स थे। सो एक्चुअली ये मैं इसको नोट्स नहीं बोलूँगा, ये मेरा सोर्स मटेरियल ही हो गया था एक टाइम पे। एक टाइम पे मैंने कुछ अलग अलग जगहों से ए मैक पढ़ा था, तो ये मेरे मुगल के वगैरह के नोट्स थे। तो यहाँ पे मैंने दुनिया भर की चीज़ें लिखी हुई हैं। अगेन आई हैव एंगेज विद द टेक्स्ट, क्या है बैटल ऑफ मुगल्स, ये मैंने कुछ कुछ चीज़ें बना रखी हैं, शॉर्टकट्स बना रखे हैं याद करने की, बैटल्स का ऑर्डर क्या था, एंड लाइक सो ऑन है, लाइक काफ़ी बड़ी नोट्स हैं। अब दिस इज़ बेसिकली, आई वुड से दिस इज़ लाइक नोट्स 1.0। इसको मैं फिर बाद में हर जगह पढ़ता था, प्रीलिम्स से पहले इसको रिवाइज करता था। बट जब मेंस आया, राइट, अब मेंस में आई न्यू दैट व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फॉर एनी काइंड ऑफ डायनेस्टी। यू आर आस्क्ड क्वेश्चंस कि यार इसके आर्किटेक्चरल लिटरेचर में क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल बेसिकली मोस्टली फ्रॉम मेमोरी। ये जो भी आप देख रहे हो, वो पुराने जो आपने नोट्स देखे, ये मेरे को इतने अच्छे से वेल इंटीग्रेटेड थे। इसमें तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें तो लाइक बैटल के और एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें हैं, और क्या क्या एग्रीकल्चर में क्या क्या था, वेरियस इवेंट्स दैट हैपन, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं। बट फॉर द पर्पस ऑफ जस्ट GS1 के जो क्वेश्चन आते हैं, और लाइक आर्किटेक्चरल एंड लिटरेचर डेवलपमेंट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ डायनेस्टी, उसके लिए मैंने ये बेसिकली मोस्टली फ्रॉम मेमोरी, लाइक इट्स लाइक 90% फ्रॉम मेमोरी मैंने ये बनाया। लाइक बेसिकली 1 to 3 पेजेस, डिफरेंट what is the literature contributions under literature under various kings, emperors, फिर पेंटिंग्स में क्या कंट्रीब्यूशन था, आर्किटेक्चर में क्या कंट्रीब्यूशन था, एंड सो ऑन। दिस हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस। दिस हैज़ अ पर्पस कि मैं इसको GS1 की सुबह को रिवाइज कर सकूँ, एंड मैंने रिवाइज किया। एंड इनफैक्ट चलो मुगल्स का तो क्वेश्चन, एक्चुअली हाँ मुगल्स का भी क्वेश्चन आया था इस पर, या इट वॉज अबाउट कल्चरल सिंक्रेटिसिज्म आई थिंक, सेकुलर अप्रोच ऑफ अकबर, समथिंग लाइक दैट। फिर एक चंडेलियास का आया था, फिर एक सावित्रीबाई फुले के बारे में, नहीं ज्योतिबा फुले के बारे में क्वेश्चन आया था। दैट ऑल्सो आई हैड इन माई नोट्स। सो दीज काइंड ऑफ नोट्स हैव अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस, एंड ये आपको किसी से लेने नहीं पड़ेंगे। अगर आपको किसी लेने पड़ रहे हैं, सो इट मीन्स इट इज़ नॉट सर्विंग द पर्पस। सो फोकस ऑन फर्स्ट दिस, गेट योर सोर्स मटेरियल रेडी। आपके सोर्स मटेरियल किसी और का नोट्स हो सकता है, बट देन डोंट कॉल देम, दे आर नॉट ट्रू नोट्स बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप उसको नोट्स बोल सकते हो, बट नोट मेकिंग इज डिफरेंट। नोट मेकिंग आपको करनी पड़ेगी और अपने आप होएगी व्हेन यू फील दैट यार सब कुछ तो मेरे दिमाग में है, अब मेरे को उसको स्ट्रक्चर करना नहीं के लिए। नेक्स्ट, ओके, फाइनली 2-3 चीज़ें और हैं। मेरे को रिकॉल प्रैक्टिस करो। अगेन ये मेरा ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन लगने, मान लो ये ब्रेन है मेरा, ठीक है। अब इसमें मैं चीज़ें भर रहा हूँ, ऑल राइट, बट माई ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू प्रैक्टिस गेटिंग इट आउट। रिकॉल को अलग से प्रैक्टिस करना होता है, बिकॉज वॉट न्यूरोलॉजिस्ट हैव फाउंड, देर इज़ अ डिफरेंट पाथवे फॉर स्टोरेज एंड डिफरेंट पाथवे फॉर रिट्रीवल। एंड आप एक चीज़ को बार बार रिट्रीव करते हो, तो आवर ब्रेन रिमेंबर्स कि इस चीज़ को कहाँ से कैसे अच्छे से रिट्रीव करना है, ऑल राइट। सो रिट्रीवल इज इट्स ओन थिंग, रिकॉल इज इट्स ओन थिंग। सो आप प्रैक्टिस कीजिए रिकॉल।
मोस्ट सिंपली चीज़ तो देखो, एक्टिव रिकॉल, एक खाली पेज लिया, अब मेरे को फंडामेंटल राइट्स लिखने हैं, आर्टिकल 19 लिखना है, देखो 1A क्या हो गया, वही स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, B असेंबली हो गया, C एसोसिएशन यूनियन कोऑपरेटिव्स हो गया, D फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो गया, E एंड सो ऑन, ये सब चीज़ें, मतलब ये सब आपको पता ही है। जो भी चीज़ें आप रिवाइज कर रहे हो, उसमें जो आपको थोड़ी ट्रिकी चीज़ लगती है, जो याद होनी चाहिए अच्छे से, उसको आप खाली पेपर पे लिखो। एंड फाइनली टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट का पर्पस ये नहीं है कि हम, चलो टेस्ट का पर्पस एक तो है एग्जाम कंडीशन सिमुलेट करना है, अपने पेपर अटेम्प्ट अप्रोच टेस्ट करना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस सीइंग क्वेश्चंस एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज इन योर हेड। मैं सच बता रहा हूँ, 2024 में आई रोट 148 टेस्ट्स। दिस नंबर माइट सरप्राइज मैनी पीपल डोंट राइट अ लॉट ऑफ टेस्ट, एंड मैं एडवाइस भी नहीं करूँगा, ये थोड़े ज़्यादा हैं। इसमें से कुछ कुछ आई थिंक मोर देन 50-60% तो खैर हाफ टेस्ट हैं, लाइक 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन के टेस्ट हैं। सो यू कैन से अराउंड 80 FLT टाइप का मैंने दिए होंगे। मैं क्या करता था, रोज़ एक ना एक टेस्ट दे देता था। इट डज़ नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई डोंट केयर ऑलवेज अबाउट द स्कोर। इट इज़ नॉट अबाउट द स्कोर, इट्स अबाउट प्रैक्टिसिंग रिकॉल, इट्स अबाउट टेस्टिंग माई सेल्फ, इट्स अबाउट, या जो भी मैंने याद किया उसको रिप्रोड्यूस करने, उसको रिकॉल करना, रिट्रीव करना, उसकी प्रैक्टिस करना। 2025 में भी मैंने अराउंड 119 टेस्ट दिखे, आई काउंटेड। सो still, I mean, again, a lot of these were half length tests. I realize I don't need so many tests, but again, a lot of people are not writing a lot of tests. लिखे तो कुछ हो नहीं जाएगा, वो स्कोर देखो, स्कोर की चिंता मत करो, इट इज़ जस्ट अ मीन्स टू एन एंड। बट प्रैक्टिस रिट्रीवल, आपको ये टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है तो आप एक्टिव रिकॉल कीजिए, इनमें से एक तो चीज़ ज़रूर करनी है। एक्चुअली अब तो मैं बोलता हूँ, आई हैव चेंज माई ओपिनियन सिंस, बिकॉज ड्यूरिंग मेन्स आई वॉज डूइंग मोर ऑफ दिस हेल्प्स मोर, बिकॉज आप हर चीज़ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, बट दिस एक्चुअली ट्रेन्स योर ब्रेन मोर, लाइक दिस इज कॉग्निटिवली मोर डिफिकल्ट, ज़्यादा लोड पड़ेगा दिमाग पे, बट इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, सो डू दिस। फाइनली ओके, वैलिडेशन थोड़ा समझा देता हूँ। हम देखो PYQ सॉल्व करते हैं, PYQs में कुछ ऑप्शंस आएंगे, मान लो A B ऑप्शन था कोई क्वेश्चन में, ये मेरे को पता था, CD मेरे को नहीं पता था, क्योंकि ये PYQ है, रेलिवेंट है, तो इसको मैं अपने नोट्स में ऐड करूँगा। एंड सिमिलरली मॉक्स में, ये मैंने PYQ वाली वीडियो में बताया था, आई लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन। सो PYQ एनालिसिस में मैंने बताया था कि मॉक्स में भी आपको जो क्वेश्चन दिखते हैं, उसमें जो चीज़ें आपको रेलिवेंट लग रही हैं, या एडजस्ट लाइक समथिंग रिलेटेड टू PYQ, समथिंग रिलेटेड टू सिलेबस, उसको आप डाल सकते हो, उन चीज़ों को आप अपने सोर्स मटेरियल में डाल लीजिए। एंड आई जस्ट वांटेड टू शो यू एन एग्जांपल। तो ये मेरा ना, सो दिस इज़ बेसिकली नोट्स ऑफ माई मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो चैप्टर्स होते हैं, ये सब चैप्टर्स हो गए, तो मैं ना जहाँ जहाँ मैं मॉक्स लिखता था, उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी, या PYQ में इन्फॉर्मेशन मिलती थी जो मेरे स्पेक्ट्रम में नहीं थी, तो उसका मैं अलग से एक मैंने नोटबुक बना, मतलब अलग से एक नोट्स बना रखे हैं, चैप्टर 3 के रेलेवेंट नोट्स, चैप्टर 4 के, चैप्टर 6 के, ऐसे हर हर चैप्टर जो स्पेक्ट्रम में है, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मार्जिन में इतनी स्पेस नहीं थी, तो मैंने इसको अलग से नोट्स बना रखा था। ऑल राइट, यू डोंट रियली हैव टू, लाइक यू कैन बेसिकली, यू डोंट एग्जैक्टली नीड दिस, बट किसी तरह सम वे दैट यू कैन एक्चुअली कीप एडिंग इन्फॉर्मेशन, आप अपने सोर्स को एनहांस कर सकते हो। एंड ये चीज़ ओवर टाइम होनी चाहिए। अगेन, डोंट रश टू गेट अ शॉर्टकट, डोंट रश कि कोई और मेरे को अपना वैल्यूडेशन की कॉपी दे दे एंड मैं उसको याद कर लूँगा, दैट इज़ नॉट द वे। ये ओवर टाइम होता है, एंड बिकॉज ओवर टाइम होता है तभी याद रहता है, एंड तभी इट विल हेल्प यू। सो एनी वेज, यू विल राइट लॉट ऑफ मॉक्स, यू विल डू PYQs, जो आपको इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट लग रही है। अगेन, मेक अ इन्फॉर्म चॉइस, what you think is relevant, see the PYQ analysis video and keep adding to your to your source material. And finally, one last thing is number of iterations. देखो, कुछ और काम नहीं करता तो रेपिटेशन काम करता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, स्ट्रैटेजी 1 to 9 जो है, इसको हर बार कीजिए, यूज़ एम अगेन एंड अगेन, हर बार एंगेज कीजिए, और स्टोरीज बनाइए, और गॉसिप कीजिए, यू नो, मेक मोर नोट्स when the time comes, when you feel you are ready, when it's well integrated. नोट्स भी एक्चुअली बहुत वर्जन्स बनते हैं, स्पेशली लेटर ऑन व्हेन यू फील कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मेरे को याद आ रही हैं, एंड नोट्स बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है, सो देन दे एक्ट एज अ वेरी इफेक्टिव मेजर ऑफ, वेरी इफेक्टिव वे ऑफ रिविजन ऑल्सो. So as many iterations that you get, you will see improvements, and I think this was fairly obvious. And that concludes this video.
Again, I will link some other useful videos. Do watch those and do engage with me in the comment section. मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जा सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी यूज़फुल चीज़ें मिलेंगी. And I'll keep adding more videos like this. Yeah, and thank you for watching. And don't forget to subscribe so that you get notified about the next video.